So now I am going to explain about the theorems on logarithm. ठीक है. So ये theorems explain करने से पहले मैं laws of indices के बारे में एक बार कुछ नोट्स देना चाहता हूँ. नोट्स मतलब जो लॉज है, लॉज ऑफ इंडाइसेस जो आई थिंक क्लास 9 और 10 में मिल गया होगा, फिर से मैं वो देना चाहता हूँ. क्योंकि अगर लॉज ऑफ इंडाइसेस क्लियर होगा तो थ्योरम्स ऑन लॉगरिथम समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है. सो लॉज ऑफ इंडाइसेस. फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट लॉज ऑफ इंडाइसेस. नंबर 1, a to the power m into a to the power n, this is equal to a to the power m plus n. सबको पता है. ओके. नेक्स्ट, a to the power m divided by a to the power n, this is equal to a to the power m minus n. Next, a to the power minus n can be written as 1 by a to the power n. Next, this one can be written as a to the power 1 by n. Next one, say a to the power m, this is equal to a to the power m. If a to the power m is equal to a to the power n, which implies it can be written as m is equal to n, provided a is not equal to 0 and 1. Yes, if a to the power m is equal to a to the power n, then we can write it as m is equal to n, provided a is not equal to 0 and 1. Next will come, if it is a to the power m equal to b to the power m, then it can be written as a is equal to b, provided m is not equal to 0. Yes, if a to the power m is equal to b to the power m, अगर exponent same हुआ तो we can write a is equal to b, provided m is not equal to 0. And here it is what? A to the power m is equal to a to the power m. That means अगर base same हुआ तो then we can write their exponent is also equal, provided a is not equal to 0 and 1. Next, a by b whole thing to the power m, it can be written as a to the power m by b to the power m. मल्टीप्लीकेशन के केस में भी सेम, a इंटू बी होल थिंग टू द पावर m कैन बी रिटन एज a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m. ठीक है. ये सब में कंफ्यूजन नहीं रखना है. ठीक है. तो मैं क्यों दिया ये लॉज ऑफ इंडाइसेस, क्योंकि अभी मैं थ्योरम्स डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ, थ्योरम्स ऑन लॉगरिथम. तो इसमें यूज हो सकता है ये लॉज ऑफ इंडाइसेस. ठीक है. सो दीज आर द main laws of indices. Okay, now I am going to discuss about the theorems on logarithm. Theorems on logarithm. The first theorem is logarithm of m into n with respect to base a. देखो कैसे लिखना है मैथमेटिकली लॉगरिथम को. लॉगरिथम ऑफ m इंटू एन विथ रिस्पेक्ट टू बेस a, विच इज इक्वल टू log m बेस a प्लस log n बेस a. दिस इज फर्स्ट थ्योरम. ठीक है. लॉगरिथम ऑफ m इंटू n, जैसे यहां पे भी मैं लिखा था लॉगरिथम ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू बेस a, तो यहां पे b के जगह में मैं लिखा m इंटू n. दिस इज फर्स्ट थ्योरम. ओके. Logarithm of m into n with respect to base a is equal to log m base a plus log n base a. ठीक है. लेकिन ये कैसे हुआ, इसका प्रूफ अभी मैं दे दूंगा. ठीक है. तो प्रूफ क्या बोलता है, I will start from right hand side. Let log m base a is equal to x and log n base a is equal to y. I have started from the right hand side part. मैं अभी ये प्रूफ करूंगा ये थ्योरम, तो इसके लिए मैं राइट हैंड साइड से शुरू किया. ठीक है. एक बात याद रखना है, I have written here separately, that's right. a to the power x equal to b, जो मैं अभी डेफिनेशन में दिया था, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट.
and x equal to log b base a. This is called logarithmic form. ये x को कैलकुलेट करने के लिए ही ये एक्सप्रेशन यूज किया जाता है, and the name of this expression is logarithmic expression, right? So these two are always equivalent to each other. ये भी मैं बता दिया था. तो जब ये सब थ्योरम प्रूफ करना है, पहले चेक करना है कि वो थ्योरम लॉगरिथमिक फॉर्म में है या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है. तो ऑफ कोर्स ये सब थ्योरम तो लॉगरिथम का ही थ्योरम है, मतलब लॉग तो रहेगा ही, एलओजी. तो ये बात याद रखना है कि लॉगरिथम से पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, सिंस दे आर वाइस वर्सा. एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड लॉगरिथमिक फॉर्म, दे आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर. So to prove this kind of theorems, first of all try to express this logarithmic form into exponential form. ये सब कुछ points है, याद रखना पड़ेगा. To prove such kind of theorem, first of all you have to express the logarithmic form into exponential form. So first term I have taken here x, log m base a is equal to x, whereas the second term is equal to say y. So these are what? Logarithmic form only. Try to express in exponential form. Side में ही लिखा हुआ है. x equal to log b base a को exponential form में लेना है तो a to the power x equal to b form में लिखना है. Since they are equivalent to each other, we can express logarithm to exponential और exponential to logarithm. So ये सब theorem proof करने के लिए याद रखना है कि पहले exponential form में express करो. So log m base a is equal to x. How can we write this one in exponential form? Look at here. ये देख के ही बोल सकते हैं क्या होगा. a to the power x equal to m. Similarly, express the second one also in exponential form. Check the definition, check the exponential form, and then you write a to the power y is equal to n. Okay? Once you check, here I have written the exponential form only, whether it is correct or not. A to the power x equal to m, yes, it is exponential form. A to the power y is equal to n, this is also exponential form. So अभी देखो यहाँ पे log नहीं है, LOG बोल के कुछ नहीं है, तो मतलब मैं क्या किया, exponential form में express कर लिया. Okay? This is say equation number 1 and this one is say equation number 2. 1 into 2, दोनों को multiply कर देना है. So m into n. This is equal to a to the power x into a to the power y. Yes or not? Now a to the power x into a to the power y can be written as a to the power x plus y, right? Laws of indices. इसीलिए मैं दिया था वो laws of indices के बारे में. Okay, so m into n, this is equal to a to the power x plus y. Now it is in exponential form or logarithmic form? It is in exponential form. Convert it into logarithmic form. Convert it into logarithmic form. तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम में एक्सप्रेस करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, a to the power x equal to b को मैं क्या लिखा, x equal to log b base a, right? X means what? The exponent. Here the exponent is what? X plus y. So x plus y is equal to log b to the base a. So b क्या है यहाँ पे, m into n base a. So now you replace x and y. What is x? X is equal to, I have considered it as log m base a, and y is log n base a. This is equal to log m into n base a. So it is proved only. ठीक है, ये प्रूफ हो गया. तो मैं क्या किया, लेफ्ट राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड तक प्रूफ किया. कुछ नहीं करना है, ये दो रिलेशन याद रखना है बस. लॉगरिथम का यही पार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट. एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करना है, या फिर लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल में कैसे एक्सप्रेस करना है. ये दो कन्वर्शन फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो यू कैन प्रूफ एनी थ्योरम ऑन लॉगरिथम. ठीक है, सो दिस वन इज द फर्स्ट थ्योरम. नाउ आई विल राइट द सेकेंड वन. सेकेंड थ्योरम इज log m by n base a, which is equal to log m base a minus log n base a. ये है second theorem. So I will not going to give the derivation, the explanation. So you just try by yourself. क्योंकि अगर फर्स्ट थ्योरम समझ में आया तो
सेकेंड थ्योरम भी आराम से प्रूव कर सकते हो। सो मैं पहले ही बोल दिया था स्टार्टिंग में, प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कॉन्फिडेंस लाने के लिए, एक सब्जेक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस लाना है, तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस चाहिए ज्यादा। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। प्रैक्टिस अगर कम होगा तो ऑटोमेटिक जितना कॉन्फिडेंस है वो 10% कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे कम होकर 2% में आ जाएगा। ठीक है ना, इसलिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ज्यादा प्रैक्टिस करना है। तो ये सेकेंड थ्योरम में जो लिखा, यू जस्ट ट्राई बाय योरसेल्फ। अगर नहीं हुआ तो मैं हूं, उसके बाद मैं चेक करूंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, खुद प्रैक्टिस करना है। एग्जाम तो तुम लोगों को लिखना है ना, हम लोग नो डाउट 24 आवर्स है अवेलेबल, कुछ भी डाउट है तो डिस्कस करने के लिए अवेलेबल है। तो इसके लिए खुद प्रैक्टिस करो, खुद ट्राई करो। एक मॉडल मैं एक्सप्लेन करूंगा, सेकेंड मॉडल मतलब सिमिलर टाइप का और एक क्वेश्चन दूंगा, खुद ट्राई करना है। जैसे कि फर्स्ट थ्योरम में एक्सप्लेन किया, सेकेंड थ्योरम मैं होमवर्क टाइप दे दिया, तो यू जस्ट ट्राई बाय योरसेल्फ दिस वन। ओके, सो दिस वन इज द सेकेंड थ्योरम। द थर्ड one is log m to the power n with respect to base a can be written as n into log m base a. Log m to the power n to the base a can be written as n into log m base a। मतलब ये जो m to the power n है, जो एक्सपोनेंट है, n को हम लोग आगे लेके आ सकते हैं। ठीक है, n को हम लोग आगे लेके आ सकते हैं। तो इसका प्रूफ मैं दिखा देता हूं, जस्ट स्मॉल ओनली। So let log m base a is equal to x. m base a I have taken. Log m base a is equal to x. मैं क्या बोला था, हमेशा लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करो, उसके बाद प्रूफ करना है। ठीक है, सो दिस इज लॉगरिथमिक फॉर्म, ट्राई टू एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल। सो इट कैन बी रिटन एज a to the power x is equal to m only. Yes, a to the power x equal to m, यही तो होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसका। ओके ना, ओके। But actually in this theorem m to the power n is there, right? But here only m is there. So now take to the power n on both sides. So m to the power n is equal to a to the power x whole thing to the power n, और laws of indices क्या बोलता है, a to the power x whole thing to the power n can be written as a to the power nx. Yes or not? So m to the power n, this is equal to, we can write a to the power nx. Let us consider this one as say b. This one is say b. क्यों मैं इसको b लिया? Because m to the power n जो है, this is known value, और मैं डेफिनेशन जब दिया था तभी बताया था कि a और b जो है वो नोन क्वांटिटी है। Among these three, here x is only the unknown quantity. तो जो टर्म में x है उसी को ही अननोन क्वांटिटी समझना पड़ेगा। ठीक है, तो m to the power n जो है इसमें तो x नहीं है, so that means this is known quantity. So let us consider this known quantity as b, and a to the power nx, देखो यहाँ पे x है तो इसका मतलब ये हो गया unknown quantity. So a to the power nx, it is just like a to the power x. ठीक है, मैं क्या बताना चाहता हूं, मीन्स मैं बताना चाहता हूं कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ये जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस दिस एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। सो इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए क्या करना है, nx दिस इज इक्वल टू log m to the power n base a. Yes or not? nx is equal to log m to the power n base a. That is n into what is x? x क्या है, log m base a, which is equal to log m to the power n base a. हो गया ये थ्योरम का प्रूफ। ठीक है, प्रैक्टिस चाहिए। दिस इज द फर्स्ट क्लास, तो ज्यादा कुछ मैं डिस्कस नहीं किया, जस्ट लॉगरिथम का डेफिनेशन और उसके थ्योरम के बारे में डिस्कस किया। एलोंग विथ दैट मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताया, वो सब पॉइंट याद रखना है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइक जेई मेंस के बारे में, लाइक एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में। सिर्फ मैं एंट्रेंस एग्जाम के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम्स का क्वेश्चन पैटर्न कैसा होता है वो सब तुम लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। एक साथ अभी मैं बोल दूंगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो एग्जाम का क्वेश्चन पैटर्न कैसा होता है वो सब धीरे धीरे तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो
ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, कैसे एक्सप्रेस करना है, किसके बाद किसको एज्यूम करना है, ये सब प्रैक्टिस करने से ही आइडिया मिलेगा। m टू दी पावर n को मैं b क्यों लिया, बिकॉज m टू दी पावर n, यहाँ पे m भी नोन है, n टू दी पावर n भी नोन क्वांटिटी है, सो यार बोथ आर नोन क्वांटिटी। a टू दी पावर nx, जो टर्म में x होगा दैट इज ओनली एक्सपोनेंशियल, राइट। सो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, इसीलिए तो इसको a टू दी पावर x एज्यूम किया गया और इसको b एज्यूम किया गया। सो a टू दी पावर x इक्वल टू b, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथम में फॉर्म लेने के लिए क्या करना है, x इक्वल टू log b बेस है। क्यों x को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, बिकॉज हम लोगों को x को कैलकुलेट करना है ना, और क्लास 7, 8, 5, 6 में भी पढ़ के आए थे, जो टर्म का वैल्यू फाइंड आउट करना है उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही रखना है, तो इसीलिए तो x को लेफ्ट हैंड साइड में रखा, बिकॉज यार x इज द अननोन क्वांटिटी, तो हमेशा x को लेफ्ट हैंड साइड में रख के कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरम। वन मोर थ्योरम इज देयर, वो थ्योरम क्या है कि अगर नंबर 3, थ्योरम नंबर 3 समझ में आया तो वो नेक्स्ट थ्योरम भी आराम से समझ में आ जाएगा। वो क्या है, log m बेस a टू दी पावर n। ये थ्योरम नंबर 3 और 4 में डिफरेंस क्या है, देखो यहां पे मैं बेस में सिर्फ a लिया था, अभी मैं बेस में a टू दी पावर n लिया, और m में क्या लिया, m के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब m के ऊपर 1 है, ठीक है ना। सो log m with respect to base a to the power n, it can be written as 1 by n into log m base है, और इसमें क्या लिखा था, n into log m base है। ये n क्या है, it is the exponent of m, लेकिन यहाँ पे n जो है वो a का एक्सपोनेंट है, तो अगर बेस का एक्सपोनेंट को आगे लेके जाना है तो राइट द रेसिप्रोकल ऑफ दैट टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे बेस का एक्सपोनेंट में n है, तो इसीलिए आगे जो लिखा वो 1 by n हो गया, लेकिन इसमें मैं सिर्फ n लिखा था क्योंकि ये नंबर का एक्सपोनेंट आगे लेके जाने से रेसिप्रोकल नहीं होता है। अगर बेस का एक्सपोनेंट को लेके जाना है तो वो ऑटोमेटिक रेसिप्रोकल हो जाता है, 1 by n हो जाएगा। ओके, सो दिस आर द थ्योरम्स ऑन लॉगरिथम। सो थ्योरम्स ठीक से याद रखना है, प्रैक्टिस करना है, डेफिनेशंस भी ठीक से पढ़ना है, कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क फ्रीली। ओके, so now I am going to discuss about the properties of logarithm. Properties of logarithm. थ्योरम के बारे में बता दिया, थ्योरम्स ऑन लॉगरिथम के बारे में, अभी मैं प्रॉपर्टीज के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या होता है, logarithm of a number, listen carefully, logarithm of a number with respect to same base, logarithm of a number with respect to same base is always equal to 1. Logarithm of a number, this is number, with respect to same base, मतलब अगर number और base same हुआ तो then the value is 1. Okay, ये सब में यूज होता है logarithm, ठीक है ना। Logarithm of a number with respect to same base is always equal to 1. अगर नंबर और बेस सेम हुआ तो इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। लेकिन मैं यहाँ पे तो सिर्फ एक एग्जांपल दिया, 5 बेस 5 इज इक्वल टू 1। इसका प्रूफ कैसा है देखो, से a टू द पावर 1 इज इक्वल टू क्या होगा, a ही होगा, a टू द पावर 1 इज इक्वल टू a ही होगा ना। ये दिस इज व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, दिस वन, it is exponential form, a to the power 1 is equal to a, it is exponential form है कि नहीं, साइड में ही लिखा हुआ है, साइड में जो फॉर्म लिखा हुआ है वही फॉर्म में ही तो लिखा। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से मैं अभी लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेस करूंगा, मैं जो प्रॉपर्टी बताया स्टेटमेंट उसका प्रूफ मैं दे रहा हूं, ठीक है। क्या है प्रॉपर्टी, logarithm of a number with respect to same base is always equal to 1. So we know a to the power 1 is equal to a, so which implies if you want to express this exponential form into logarithm कैसा होगा, 1 is equal to log a base a, है कि नहीं। मैं a के जगह में k भी लिख सकता हूं, a के जगह में मैं k भी लिख सकता हूं, so k to the power 1 equal to k होगा, सो 1 इक्वल टू क्या होगा, log k बेस है, k बेस k, यस और नॉट। यही है इस थ्योरम का प्रूफ, लॉगरिथम ऑफ ए नंबर विथ रेस्पेक्ट टू सेम बेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। क्या किया, मैं एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम में कन्वर्ट कर लिया। ये जो लॉगरिथम का टॉपिक है ना,
मैं बार बार बोल रहा हूं, ये दो चीज याद रखना है बस, ये दो रिलेशन याद रखो, मीन्स कन्वर्शन फॉर्मूला याद रखो बस, लॉगरिथम में और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। दीज आर लाइक बेस्ट फ्रेंड, जहां पे जाता है एक साथ, बिकॉज दे आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर में बोला था। इसलिए देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेस किया तो प्रॉपर्टी नंबर 1 प्रूफ हो गया। लॉगरिथम ऑफ ए नंबर विथ रेस्पेक्ट टू सेम बेस is always equal to 1. This is first property. Now property number 2. The logarithm of a same number with respect to different base will give different values. Logarithm of a same number with respect to different base will give different values. Once again I am repeating property number 2. Logarithm of a same number with respect to different bases will give different values. जैसे कि we all know 2 to the power 6 is equal to 64. मैं इसका एग्जाम्पल देने के लिए जा रहा हूं, प्रॉपर्टी जो बताया अभी सेकेंड प्रॉपर्टी उसका एग्जाम्पल। We all know that 2 to the power 6 is equal to 64. We know 4 cube is also 64. We know 8 square is also 64. है ना? स्टेटमेंट क्या बोला? Logarithm of the same number. Which one is the number here? This one. Logarithm of the same number with respect to different bases. With respect to different bases will have different values. तो देखो यहाँ पे मैं 3 एग्जाम्पल लिया। 2 to the power x equal to 64, 4 cube equal to 64 and 8 square equal to 64. What kind of expression is this one? All three are in exponential form. Yes or not? मैं बोला था बार बार logarithm to exponential, exponential to logarithm, यही करना है, यही करना है ये logarithm में। ये जो टॉपिक है इसमें logarithm से exponential में जाना है, exponential से logarithm में जाना है, बस ये सभी करना है। So all the three are in exponential form. ठीक है? Now I want to express this exponential form into logarithmic form. देख लो, I want to express this exponential form into logarithmic form. Let us check once. So exponential form को logarithmic form में लाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? a to the power x equal to b form में है, तो मतलब क्या होगा? 6 equal to log 6 equal to क्या लिखा? log 64 base 2. Yes. Here also 3 equal to log 64 base 4. Here also 2 equal to log 64 base 8. कैसे हो गया? How can we say that the value of log 64 base 2 is equal to 6? कैसे हुआ? ये तो मैं सिर्फ एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया, कन्वर्शन फॉर्मूला अप्लाई करके मुझे ये मिला, बट हाउ इज इट पॉसिबल? लेट अस चेक वंस. log 64 base 2, this one I am explaining, okay? log 64 base 2 can be written as log 64 को मैं 2 to the power 6 फॉर्म में भी लिख सकता हूं ना, और बेस को बेस जैसा है वैसा ही लिखा। फैक्टराइज द नंबर विथ रेस्पेक्ट टू द बेस, बेस में जो है वो नंबर के ऊपर डिपेंड करके इस नंबर को फैक्टराइज किया मैं। 64 कैन बी रिटन एज 2 to the power 6. जस्ट नाउ आई हैव गिवन वन थ्योरम, m to the power n can be written as n into log 2 base 2, that is 6 into log 2 base 2. And what will be the value of this number? Property number 1 क्या है? Logarithm of a number with respect to the same base is always equal to 1. Yes. So 1 into 6, this is equal to 6. That's why we can write 6 equal to log 64 base 2. Okay ना? यहाँ पे मैं सिर्फ एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम में एक्सप्रेस किया, लेकिन इसका वैल्यू कैसे 6 मिला? दिस इज द एक्सप्लेनेशन. फैक्टराइज द नंबर बेस्ड ऑन द बेस, बेस के ऊपर डिपेंड करके इसको फैक्टराइज किया मैं, तो फिर जाके मुझे 6 मिला. ओके, सिमिलरली नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सेकेंड वन. सेकेंड वन में क्या लिखा मैं? 3 equal to log 64 base 4. How is it possible? How can we say that the value of log 64 base 4 is 3? Let us check once. Log 64 base 4 can be written as, क्या करना है? Factorize this number with respect to its base. बेस में 4 है तो 64 can be written as a 4 cube with respect to 4. This 3 will come here, so 3 into log of 4 with respect to base 4. So logarithm of a number with respect to the same base is always equal to 1.
1 into 3, that's why it is equal to 3. Okay, similarly this one also, ये भी सेम है. 64 को क्या करना है, बेस में क्या है 8, तो 64 कैन बी रिटन एज 8 स्क्वायर. सो 8 स्क्वायर जो 2 है, 8 का पावर जो 2 है वो आगे आ जाएगा ना. सो 2 इंटू log 8 base 8. Log 8 base 8 is always 1. 1 into 2. That's why we can write 2. Okay. So स्टेटमेंट क्या लिखा था प्रॉपर्टी नंबर 2 का, लॉगरिथम ऑफ द सेम नंबर. सेम नंबर क्यों बोला गया है, 64 64 64 सेम नंबर ही तो लिया. सो लॉगरिथम ऑफ द सेम नंबर विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंट बेसिस. Different bases, you can check different bases. In the first case I have taken base 2, in the second case I have taken base 4, in the third case I have taken base 8. The logarithm of the same number with respect to different bases will have different values. Will have different values. देखो फर्स्ट केस में जब बेस 2 लिया था रिजल्ट मिला 6, सेकेंड केस में जब बेस 4 लिया रिजल्ट मिला 3, थर्ड केस में जब बेस 8 लिया तो रिजल्ट मिला मुझे 2. So this is second property. Okay. The third one is the logarithm of 1 with respect to any base is always 0. Third property. Logarithm of 1 with respect to any base say 5 for example, with respect to any base is always equal to 0. Logarithm of 1 with respect to any base is equal to 0. तो इसका प्रूफ क्या है, देखो इसको कैसे प्रूफ किया जाता है, कैसे हुआ 0. We all know that a to the power 0 is equal to 1, right? It is exponential form converted into logarithmic form. So which implies log 1 with respect to base a, this is equal to 0 होगा. So logarithm of 1 with respect to any base is 0 हुआ. बट देयर इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो सब मैक्सिमम स्टूडेंट में ये डाउट रह जाता है, क्योंकि मैं डेफिनेशन में ही बोला था कि a इज ए पॉजिटिव नंबर बट अदर देन 1, मींस a ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1, है ना. a का वैल्यू 1 नहीं हो सकता है, 1 से ज्यादा हो सकता है. ओके, कुछ भी हो सकता है बट अदर देन 1. सो दैट मीन्स क्लियरली वी कैन से दैट log 1 base 1 is undefined. Log 1 base 1 is undefined. Of course here the property tells us that logarithm of 1 with respect to any base is 0, but this is valid only in case of a is not equal to 1. याद रखना, ठीक है. This property is valid only in case of a is not equal to 1. So that's why, since a is not equal to 1, that's why log 1 base 1 is undefined. ठीक है, डेफिनेशन में ही मैं बताया था a का वैल्यू 1 नहीं हो सकता है, बट a इज ए पॉजिटिव नंबर. सो दिस प्रॉपर्टी इज वैलिड इन केस ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 1. सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट log 1 base 1 is always undefined. Okay, so these are the properties of logarithm. So today I have discussed about the definition of logarithm, theorems on logarithm and properties of logarithm. सो ये सब कुछ ठीक से देखना है, वीडियो ठीक से देखना है, जो मैं अपलोड करूंगा वो ठीक से देखना है. कुछ भी अगर डाउट होगा तो पूछना है मुझे, ठीक है. सो थैंक यू फॉर टुडे.